this chapter, and you will know many new things. We all know that the city life and village life are quite different from each other. Yes, you know that village life are simple and but the city life are very difficult and complicated. So city life and urban life are very different. Cities are more populated than the villages. As you know that for getting job for the purpose of employment, many people are migrating from the village to town. है ना? हर दिन हर दिन बहुत सारे लोग जो है वो काम के तलाश में गांव से शहर की ओर आते हैं. As a result, those who have to look after the management of the city have to make adequate provisions for drinking water, electricity, what transport, healthcare centers, hospitals, etc. ठीक है. तो जब बहुत सारे लोग शहर में आएंगे तो शहर में क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो सारे चीज की व्यवस्था की जिम्मेवारी शहर पर आ जाती है. लाइक ड्रिंकिंग वाटर, electricity, transport, and hospital facility, all the things required to maintain the city life, to maintain the city life. So in addition to the above, there are big markets, mill and production centers in the cities. ये सारे पॉपुलेशन होने के साथ साथ ये सारी सुविधाओं की जरूरत होती है. यानी कि जितने पॉपुलेशन आएंगे but I'm not muted. Am I audible to you or not, students? Now you can reply. Students, one student has sent the message that he is not listening me. Anyone can reply me? Are you able to listen me or not? Okay, okay. Okay, okay, students. It means that there is a network problem from your side, bachcho. Because many students are listening me properly. Students, you will change your place. ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे तुम्हें नेटवर्क अच्छे से मिले. मैं अपने वीडियो ऑफ करूं, कैसे फिर रिकॉर्डिंग होगा बेटा? ओके ओके. Now you those students who are not my bus is not going to them, they will change their place. So just I was just stating that more and more people are migrating in the urban areas and they are making the city life very difficult. Besides this, there is a big market, a mill, production centers are here. So this leads to great restraint on the provision of civic amenities. The responsibility of providing the amenities and their maintenance
is entrusted to the urban local governing bodies. It would be useful to study how these bodies are composed and how they perform their various functions. So जितने लोग यहाँ पे आते हैं, जितनी भीड़ हो जाती है, जितना पॉपुलेशन बढ़ जाता है, उतने ही सिविक एमिनिटीज पर जो पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है ताकि उन्हें प्रोवाइड किया जाए. सिविक एमिनिटीज मींस वो बेसिक रिक्वायरमेंट विच नीड्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन, लाइक clean drinking water, like transport facilities, like sanitation. So to make the city unhygienic, these are the responsibility which is provided by in the urban area by urban governing body. ठीक है, urban governing body जो है, urban governing body ये सारे responsibilities urban governing body का हो जाता है कि शहर में चाहे कितना भी population. Fourth Amendment Act of 1992 has provided 3 types of urban local bodies. तो ये जो civic amenities provide करने के लिए जो local bodies बनाई जाती है, इनके लिए जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है हमारे urban local bodies के अंदर. Wait a minute, students are joining very late, so it takes time to give them entry. तो 74th अमेंडमेंट इसके लिए एक लाया गया था 1992 में. इसमें 3 तरह के अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई थी. दे आर नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरिया विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू, जो गांव से शहर में चेंज हुआ है. ठीक है, जो गांव से शहर में चेंज हुआ है वो करती है, उसको हम नगर पंचायत कहते हैं. ठीक है, and municipal council और नगर परिषद, municipal council और नगर परिषद both are municipal council और नगर परिषद वैसे cities के लिए होती है जिनका population 20,000 to 10 लाख होता है. ठीक है, 20,000 से लेकर 10 लाख का population जहाँ पर है वहाँ पे कौन सी urban local body होगी? municipal council और नगर परिषद. municipal council को नगर परिषद भी कहा जाता है. एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, इवन गया एंड पटना. ठीक है, जितने भी बड़े शहर हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, वैसे जगहों पे जो अर्बन बॉडी होती है उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहते हैं. तो इन दिस topic you will find 3 types of urban local body. First is Nagar Panchayat, which is for those places which is gradually developing into the city. तो धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं. दूसरी ओर है हमारा म्युनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद, जहाँ का वैसे प्लेसेस जहाँ का पॉपुलेशन 20,000 to 10 लाख के बीच में है, वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद होगा. एंड थर्ड इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना, इवन गया. देयर इज आल्सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया. आप देखते हो कि यहाँ पे जो कचरा उठाते वाली गाड़ियां होती है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नगर निगम भी कहा जाता है. ठीक है, आपने देखा है जो गाड़ियां कचरा ले जाती हैं या जो लोग साफ सफाई करते हैं नगर निगम गया लिखा रहता है. हैव यू सीन दिस स्टूडेंट्स? आपने देखा कभी भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जो होती है या आपका डस्टबिन जो लगा रहता है शहर में जहां तहां पर, वो नगर निगम उस पर लिखा रहता है. ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नगर निगम भी कहा जाता है. ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम भी कहा जाता है. Got this? You have not seen? Pragati is telling yes, ma'am. Very nice. I'm unmuted and you are not speaking anything. What had happened? आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, शायद फिर अनम्यूट हो जाए. मैम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसे कहते हैं
सिटी में 10 लाख से ऊपर होगा मतलब पॉपुलेशन, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा मैम। यस, जहाँ का पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है 10 लाख से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की व्यवस्था की गई है, यानी वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, म्युनिसिपल और मैम कॉर्पोरेशन 20,000 टू 10 लाख रहेगा बड़े तो बड़े म्युनिसिपल शहर में। काउंसिल होगा, नगर परिषद। 20,000 टू 10 लाख हाँ, रहेगा तो और नगर परिषद। यस यस, नाइस। तो ये हमारा प्रोविजंस है, जहाँ पर 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हमारे शहर का भी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा था कि आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नगर निगम भी कहा जाता है। ठीक है, और आप देखते होंगे कि गाड़ियां जो हमारे कचरा उठाने के लिए आती हैं, डस्टबिन तो जहाँ तहाँ लगा रहता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन सबके कपड़ों पर नगर निगम गया लिखा रहता है, क्योंकि उन्हीं का काम है पूरे शहर की साफ सफाई करना। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। द अर्बन लोकल बॉडीज, popularly known as municipalities, are elected by the people directly through regular elections. Member elected in this way are called municipal ओके। तो म्युनिसिपल काउंसिल जो है, म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज को म्युनिसिपैलिटीज भी कहा जाता है। एंड ये जो म्युनिसिपैलिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। रेगुलर इलेक्शन इज टेलिंग, तो आफ्टर एवरी 5 years वार्ड कमिश्नर का, आप सुन रहे हो कि कहीं पर ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, अभी यूपी में हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है। तो रेगुलर इलेक्शन होते हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और 5 साल में इनके लिए आपके डिफरेंट एक शहर के अंदर डिफरेंट वार्ड बनाए जाते हैं। एक 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 पॉपुलेशन, एक फिक्स पॉपुलेशन के साथ वार्ड बना दिए जाते हैं, और हर वार्ड से कुछ कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जिन्हें हम वार्ड कमिश्नर भी कहते हैं। आपके आप जिस मोहल्ले में रहते होंगे आपका भी वार्ड कमिश्नर कोई ना कोई होगा। यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स आल्सो दैट व्हाट इज द हु इज द वार्ड कमिश्नर ऑफ योर लोकेलिटी, है ना। तो ये जो लोग हैं, ये वार्ड कमिश्नर जो होते हैं या जिनको हम म्युनिसिपल काउंसिलर्स भी कहते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं इलेक्शन के द्वारा। ये वोटिंग होती है, उसके बाद वो जो जीतते हैं उन्हें वो अर्बन लोकल बॉडीज के मेंबर बनते हैं। इस सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, जस्ट मैंने कहा कि हर शहर में वार्ड में बांट दिया जाता है, एंड द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर सिटी और टाउन। और ये नंबर्स कितने होंगे वार्ड का ये फिक्स नहीं है। जो शहर बड़ा होता है उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन अधिक होता है, वहाँ वार्ड अधिक होते हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है वहाँ पे वार्ड कम होते हैं। वार्ड भी कम होते हैं मैम। वार्ड जो है 2-3 मोहल्ले का बना करके एक वार्ड बना दिया जाता है। यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स दैट व्हाट इज द वार्ड नंबर ऑफ योर लोकेलिटी, एंड उसकी साफ सफाई करके उसकी जिम्मेवारी वार्ड कमिश्नर की होती है, और वो वार्ड कमिश्नर इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। आपके पेरेंट्स जाते होंगे वोट देने के लिए उन्हें, और जो मेजोरिटी ऑफ वोट जिन्हें मिलता है दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ नगर निगम और नगर पंचायत। ठीक है, तो वार्ड जो है वो बटे रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है उसके वार्ड अधिक होते हैं। द वोटर इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। जो भी वार्ड आपके मोहल्ले के वो सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उन्हें फिर इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, है ना। द एज टू बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी लेस देन 21 years। जो लोग वार्ड कमिश्नर के इलेक्शन के लिए खड़ा होते हैं, कम से कम उनका एज कितना होना चाहिए, 21 years। 21 years से कम नहीं होना चाहिए। सम वार्ड्स आर रिजर्व फॉर SC ST कैंडिडेट्स। SC ST
scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. 1/3 seats are in each municipality are reserved for women. तो जो नंबर ऑफ वार्ड, शहर के अंदर जितने भी वार्ड होंगे, तो उस वार्ड में कुछ सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होता है, कुछ ओबीसी के लिए भी रिजर्व होता है, और 1/3 सीट जो है स्पेसिफिक वुमेन खड़ा होती है इलेक्शन लड़ने के। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि सारे तरह के लोग जो है वो शासन व्यवस्था में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और अपने अपने हित के लिए, अपने अपने मोहल्ले के वेलफेयर के लिए काम करें। आप देखते हो कि मुखिया का चुनाव होता है तो बहुत सारी वुमेन्स इसमें होती हैं। ठीक है, आपने अभी गया कॉलेज पर बार बार रोक करके जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था वो पंचायत इलेक्शन ही था, पता है ना। हम लोग को बार बार परेशानी होती थी ना कुछ समय पहले तक, बहुत टाइम्स में उनकी काउंटिंग हुई है और इलेक्शन हुआ है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है फूल माला पहन करके विनर बन करके घूम रहे हैं। तो ये होता है हर 5 साल के बाद ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भी म्युनिसिपल काउंसिलर का इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ सीट रिजर्व होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी एंड फॉर वुमेन। नगर पंचायत, जस्ट मैंने पहले बताया, नगर पंचायत कहाँ होता है, जहाँ का, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया, who will explain? नगर पंचायत वहाँ होता है जहाँ का पॉपुलेशन, जहाँ का जो कि सेमी अर्बन एरिया होता है, जो गांव से शहर में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से शहर भी नहीं रहता, पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम होता है, वैसे जगह पे ग्राम पंचायत होता है। इट इज बिगर देन अ विलेज एंड स्मॉलर देन अ सिटी। आप कह सकते हो ये शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है। और ये अर्बन एरिया का स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी, अर्बन एरिया का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा लोकल बॉडी है। ए नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत is elected directly by the people and the vice chairperson is elected by the member themselves. तो नगर पंचायत मैंने जस्ट बताया ये वहां होता है जो कि गांव से बड़ा हो और शहर से छोटा हो। जितने भी नगर पंचायत हैं उनके नंबर ऑफ मेंबर डिपेंड करते हैं वहां के पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन अधिक है तो नंबर ऑफ मेंबर्स अधिक होंगे, अगर पॉपुलेशन कम है तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी कम होंगे। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द, जो चेयरपर्सन नगर पंचायत के हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वाइस चेयरपर्सन चुने हुए मेंबर्स में से चुन लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइम नगर पंचायत, क्या काम है नगर पंचायत का? भी आपने पढ़ा कि जितने भी सिविक एम्यूनिटीज के काम हैं, जितने भी आपने पढ़ा साफ सफाई का काम, ये सब काम उनका करते हैं, जो उनकी बहुत सारे काम हैं वो हम लोग अभी देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नगर पंचायत। टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस। लोकल प्रॉब्लम्स को, जहाँ के वो नगर पंचायत है वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना और लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। बेटर लिविंग कंडीशंस कैसे प्रोवाइड होगा बच्चों? जब उन्हें पानी की सुविधा मिले, जब उन्हें साफ सफाई मिले, जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, जब उन्हें हेल्थ केयर उनका किया जाए, तब उनका लाइफ जो है वो बेटर होगा। And second is to provide civic amenities like water and electricity. civic amenity provide करना, पानी और बिजली, बिना पानी और बिजली के हमें बहुत परेशानी होती है, तो हमें ये प्रोवाइड करने का काम नगर पंचायत का है। टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, साफ सफाई करना, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टू मेंटेन पार्क, प्राइमरी स्कूल एंड पब्लिक बिल्डिंग। क्या करना? पार्क मेंटेन करना। प्राइमरी स्कूल्स भी इसके अंदर कंट्रोल में रहते हैं, वो उसको भी देख रेख करता है। ठीक है, और
पब्लिक बिल्डिंग, जो भी सरकारी बिल्डिंग है उनका देख रेख करना, उनको मेंटेन करना नगर पंचायत का काम। एंड लास्ट इज टू कीप बर्थ एंड डेथ, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा? इसी म्यूनिसपैलिटीज में, चाहे वो यस नगर मैम। निगम में, चाहे वो नगर म्यूनिसिपल काउंसिल में, चाहे नगर पंचायत। परिषद नगर। और अगर किसी का डेथ होता है ना, तो उसकी भी सूचना देनी पड़ती है नगर निगम या नगर पंचायत को। तो ये सारे, और वहां से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देगा। तो जन्म और मृत्यु, इन दोनों का ही रिकॉर्ड रखने का काम नगर पंचायत का है। अब ये सारे काम करते हैं तो इसके पैसे कहाँ से मिलते हैं भाई? इनकम ऑफ टैक्स, सोर्सेज मैम ऑफ टैक्स इनकम क्या है, है? गवर्नमेंट तो टैक्स, अंडर गवर्नमेंट है। इट गेट फंड्स थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स। अभी जो आप देख रहे हो कि सब जगह रोड को फोड़ करके अब पाइप दे रहा है ना, तो वो जो वाटर सप्लाई करेगा तो उसके बदले में आपको टैक्स भी पे करने होंगे, वाटर टैक्स। ठीक है, फिर इसके बाद है व्हीकल्स टैक्स। अब गाड़ी का भी आप लाइसेंस बनाते हो, उसके लिए भी आपको टैक्स भरने होते हैं। बिल्डिंग टैक्स, आपको यस जहाँ मैम। घर, जो आपका घर है तो आपको अपने घर का भी टैक्स देना पड़ता है। म्यूनिसिपल बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी, अगर म्यूनिसिपल बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो उसका भी रेट आपको देना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द मनी, एंड केयरफुली यस बच्चों, तो climate the is with them. Her name was Meena. Meena was देखो बेटा, तो ये काम जो है इनका है। और नगर पंचायत को ये जितने भी तरह के टैक्सेस है, ये इसी से उनको पैसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर मनी उन्हें कहाँ से मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर उनको पैसे देती है, ग्रांट। और कभी कभी ये स्टेट गवर्नमेंट से लोन भी लेते हैं और लोन लेकर काम करते हैं। एक और तरह का टैक्स जो है ये देते हैं, वो है ऑफरिंग, इज अ टैक्स लेविड ऑन एंट्रिंग अ सिटी। अगर शहर के अंदर जब सामान से भरे ट्रक वगैरह इंटर करती है तो उससे वो टैक्स लेते हैं। ठीक है, दिस डे इट हैज बीन एबोलिशन, दिल्ली, हरियाणा एक्सेट्रा, लेकिन बहुत सारे जगहों पर अब इसे हटा दिया गया है। पहले गुड्स एंट्री करके आप देखो जहाँ लगा रहता है, तो अगर दूसरे जगह से आप आइए तो वहां पे आपको एंट्री लेनी होती है, तो वैसा टैक्स को नहीं करते। म्युनिसिपल काउंसिल देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ होगा जिसका पॉपुलेशन कितने से कितने के बीच होना चाहिए बच्चों? जल्दी, अभी बताया मैंने आपको। म्युनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद are also called municipal board and municipal committees। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, नगर परिषद, म्युनिसिपल बोर्ड्स, म्युनिसिपल कमिटीज। They are established in the city with population between 20,000 to 10 lakh। ये उन शहरों में होता है जिसका पॉपुलेशन 20,000 to 10 लाख होता है। अभी मैंने बताया पर आप लोग भूल जाते हैं। This is not good। They are established in the city with population between 20,000 to 10 lakhs। Yes, 20,000 to 10 lakh। The number of members varies from 50 to 60 and are directly elected by the people for 5 years। नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, तो ये 15 से लेकर के 60, मिनिमम मेंबर 15 और मैक्सिमम मेंबर 60 तक हो सकते हैं, 60 तक। और दे आर इलेक्टेड फॉर द 5 years। इनका भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चेयरपर्सन भी चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, इनका टर्म 5 years होता है। एंड डिप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं
वो इलेक्टेड मेंबर्स में से चुन लिए जाते हैं। द मीटिंग ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर प्रिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन। म्युनिसिपल काउंसिल की मीटिंग हर एक दिन होती है और मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरपर्सन करते हैं। An executive officer who is appointed by the state government look after the general administration of the city. He acts as a link between council and the state government. इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और इनका काम है शहर का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, और ये म्युनिसिपल काउंसिल और गवर्नमेंट के बीच लिंक का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो हेल्प है, जो डायरेक्शंस हैं, जो एडवाइस है, उनको वो म्युनिसिपल काउंसिल तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल? दैट यू सी, with the fast changing in the cities, the function and responsibility of municipal council are, यानी कि जो शहरों में बहुत तेजी से जो चेंजेस है, उसकी वजह से म्युनिसिपल काउंसिल्स की फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही। तो व्हाट आर देयर फंक्शंस? फर्स्ट, इट इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इसका काम है।